thousands displaced, living in deplorable conditions. Makeshift tents that they now call home. Muzaffarnagar's relief camps tell a sorry tale of survival for each and every riot-hit victim. It's 12:30 in the midnight, a time when most of us will be sitting in our rooms, comfortably warm under our blankets, sipping on a hot cup of coffee on a chilly winter night. But not many enjoy this luxury. We have reached the Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh to gauge the ground reality of the many relief camps which have been housing thousands of people over the past few months who got displaced after riots struck in Muzaffarnagar in September this year. And the truth is, many of these people are still struggling to get the basic amenities to live a normal life. And the lack of healthcare facilities has led to the death of many children over the past few days. And the dip in the temperature is making the situation even worse. With no warm blankets and just a makeshift shelter as their roof, passing each and every day in this winter season has become a battle of its own for the people in Muzaffarnagar. And this is a harsh reality for these people as well. From owning huge farmlands, they have been stripped to bare minimum. ठंड का तो ऐसा है जी, बूढ़े बच्चे सब सर्दी में मरते हैं। आज जी गांव हमारा हसनपुर माजरा लिसाड़ का है। जब गांव में से लिसाड़ में बंदूक और तलवार लेकर आदमी को काट लगे तो हम कोठे चढ़ रहे थे। कोठे चढ़ने के बाद में धुम्बे धुमाल उठ रहे थे। धुम्बे धुमाल उठने के बाद में हम नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद में घर में घुस गए। घर में भी वे लोग नहीं पंडा छोड़ा, घर में भी बढ़ गए और हम ईखों में चले गए, खेतान में चले गए और गोद में बच्चे, पेट में एक पैरों बच्चा, तीन बच्चे लेकर निकले हम। दिक्कत तो जी इतनी है कि बच्चे भी बूढ़े भी सब सर्दी में उठते हैं और कोई बीमार है, कोई बुखार है, कोई खांसी है, कोई नजला है। परेशानी इतनी है, कोई भी हमारे पास में घर नहीं मिल रहा, हमें ठिकाना नहीं मिल रहा। देखो जी, जब घर से निकल कर चले हैं हम तो कितना जोर पड़ता है अपनी जन्मभूमि छोड़कर। But what has followed for these rioted families is cruder than they could ever imagine. Survival in these camps has become a challenge for these people. And with winter setting in, life has become hell. Over the past few weeks, the bone-chilling weather has taken a toll on many children living in these so-called relief camps. Our first stop is Muzaffarnagar's Jola Relief Camp, which houses more than 400 families. Here, we met Shehzad and Rashda Khan. And the story is nothing short of a nightmare. 4 months pregnant Rashda lost her unborn child as she was unable to cope with the dipping temperature. बच्चा था जी, वो 4 महीने का, वो गिर गया ठंड की वजह से। और जी कल हमारी झुग्गी में सांप निकला, बच्चे 10 की वजह से बीमार हो गए जी। हमारे नासिक जो कल नासिक बारिश हुई है जी, और नासिक ठंड की वजह से हमने पूरी रात बारिश में काटे बैठ के। हमारी झुग्गी में सांप निकला है जी। While spending nights in these camps were unimaginable, we wait to see what the day looks like. We have seen the state of relief camps in Muzaffarnagar at night, but the condition of these relief camps isn't any better during the day as well. People continue to live in extremely deplorable conditions in these camps in Muzaffarnagar and Shamli district. Right now we are heading towards the relief camps in Loi and Malakpur, which till now have recorded the maximum number of children death over the past few days because of the biting cold, because of lack of medical facilities. We reached the relief camp at Loi, which again houses more than 3,000 victims.
People tell us that more than 16 children have died in this camp alone since November this year. Shakir had a huge house in his village before it was burned down during the riots, and he was forced to live in these tents with his family. But it was the death of his 9-month-old son Sufyan which has left him devastated. थोड़ा जो है परेशानी हुई, जैसे सर्दी का माहौल था। अच्छा मकान में से निकल गए और जो है कि झोपड़ी में आ जाना, अच्छा थोड़ा जो है माहौल तो बदलना ही पड़ेगा ना। अच्छा माहौल की वजह से थोड़ा जो है सर्दी लगी बच्चे को। सर्दी लगने के बाद में जो है डॉक्टर के पास लेके गए। रात में जो है उसको तकरीबन 12 बजे के करीब उसको जो है परेशानी होनी शुरू हुई। जैसे भी आवाज़ जो है बच्चा, जैसे बड़ा आदमी जो है चीख मारता है, चिल्लाने लगता है, ऐसे उसने जो है चीख मारी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। अच्छा गांव में होते तो जो है गाड़ी वाड़ी का जो है साधन करते। अब पैसों की भी जो है दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि जो है यहाँ अपना जो है खा रहे हैं। जैसे इमदाद आ जाती है, ज़कात फितरे का पैसा आ रहा है लोगों पे, वो खा रहे हैं। हम लोग जो मतलब हम खुद निकालते थे, हम खुद लोगों को जो है खिलाते थे, वो चीज़ हम खा रहे हैं खुद। अच्छा हमने फिर जो है एम्बुलेंस पे यहाँ फ़ोन किया, तकरीबन जो है 2-1 घंटे के करीब में आई हो। यहाँ आने के बाद में जो है बच्चों को लेकर हम जो मुझे वहाँ बुढ़ाने के पहुँचे। बुढ़ाने पहुँचने के बाद में हमने कहा ड्राइवर को, भाई तुम जो है डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा वो कह ले यार तुम्हें जल्दी क्या है। मैं कह ले भैया हमारे बच्चे की जो है हालत ख़राब होती जा रही है यार, तुम जो है प्लीज़ मगर जो है जल्दी करके बुलाओ। डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद में उन्होंने जो है देखा। देखने के बाद में कह ले भैया जो है ऑक्सीजन देनी पड़ेगी इसको तो बच्चों को। मैं सर आप जो है सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकार की जो है तनख्वाह ले रहे हो, तो सरकार ने आपको जो है कि क्या ये सुविधा नहीं दी आपको? अब जो है रात की समय है, 2 बज रहे हैं, अब कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? हमारे पास पैसा नहीं है, दंगा पीड़ित वाले आदमी हैं हम, हैं? वो कहे वैसे ही जो है घर से परेशान हम हैं, तो कहाँ जाएंगे? हमने कहा उन सबको भाई चलो जो 100-200 रुपये ले लेना आप जो है प्राइवेट डॉक्टर को लेके चलो। अच्छा अगर वे टाइम पे हमारे बच्चों को लेके चले जाते बुढ़ाने के अंदर ही, तो हमारा बच्चा जो है शायद बच जाता। And amidst this, the Chief Minister Akhilesh Yadav had promised the stars, claiming to be having extreme sympathy for these rioted victims. मुजफ्फरनगर में जो कैंप में रह रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और सरकार, हम सब लोग चाहते हैं कि वो वापस घर लौटें और घर वापस लौटें, ये हम सब चाहते हैं। जो वहाँ पर पीड़ित लोग हैं, वहाँ के बहुत सारे सम्मानित लोग, चाहे वो मुजफ्फरनगर के लोग रहे हों और चाहे शामली के, उन लोगों ने ये तय किया कि ये गांव वापस नहीं जाना चाहते हैं, घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। और उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने सामने अपना घर टूटते देखा, जलते देखा, नुकसान होते देखा है। But as these people have been left to fend for themselves, the anger against the Samajwadi Party government is very evident. सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, अखिलेश यादव की तरफ से कोई यहाँ चीज नहीं आया, न राहत आई, न कोई उनका आदमी आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। हमारे लिए तो सोई रही, जब यहाँ पे कोई राहतकारी नहीं है, कुछ नहीं है, हम परेशान हैं, बस सोई रही है हमारी तरफ से। तो पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, हैं? जब उनका वोट का नंबर आता है लेने के, जब तो हमारे यहाँ पे आते हैं, अब तो कुछ नहीं है। पहले मुल्ला मुलायम सिंह बोलता था वो, अब जो कुछ भी नहीं बोलता, अब जो कुछ भी नहीं है, टोपी टेक के मुल्ला बन गया। अब जो हमारे लिए ये हो रहा, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो दोनों कह रहे हैं यहाँ तो नोटिस ले जाओ और यहाँ तो चले जाओ, जुग्गी ठहरा के 10 लोग कहीं चले जाओ, 10 कहीं चले जाओ। अब बताओ कहाँ जा? जो हमारे सितारी है वो भी यहीं आ रहे बेचारे। पड़े है यहाँ, कौन सुन रहा हमारी? आवे भाषण दे जा, कुछ भी नहीं करते, नुका हाँ करेगे। जी हमें तो अपने बच्चों का छावा चाहिए जी। मैं 4 महीने हो लिए, अब लोग कुछ नहीं करा जी ने।